Hello all, I welcome you to the 8th lecture of this welding process series. My name is Divyanshu Pandey. I have done my master's from IIT Kanpur. I am having 3 years of teaching experience and currently working under Techie project as an assistant professor in Engineering College, Jhalawar. In this welding process series, we have seen the basic introduction to welding, and we have seen the different kind of classification till now. What are the different kind of weldings? And we have seen the power sources which we use in welding operations and the characteristic of that power sources and where we require a particular kind of power sources. We have also covered this part, and we have seen the effect of arc length and what will be the optimum arc length and what will be the power corresponding to that. And we have in last lecture we have seen the maximum power for a linear characteristic power source. So in today's lecture we are going to cover the melting efficiency part. So from this part also we have seen a couple of questions in last 3 to 4 years paper of GATE examinations, and if you check those papers, then you will find out one of these questions in each set. So alternatively, they used to ask a question from this melting efficiency, and from last 3 to 4 years, the question asked from this welding part is more as compared to previous years, last before 5 years. So this is that's why this is a kind of important topic along with your characteristic part, which we have covered in I think in fifth or sixth lecture we have covered the characteristic part. That part is also important if you are considering this numerical part of welding. And now this melting efficiency is also important. So in today's lecture we will see what kind of efficiencies are there in welding processes. We will cover that part, and we will solve some previous year questions at the end of today's lecture. And after today's lecture we will start the detailed discussion about the different welding processes, such as your tungsten arc welding, your uh, gas gas welding, and your submerged arc welding and resistance welding. All those kind of welding in a detailed way we will start from next lectures. And for like in spot welding and in resistance welding, they also ask some numerical questions. So that part we will cover along with the detailed version of welding process when we will start that particular welding. So from till now we have covered the physics, all the physics part of your arc welding on, and all the prerequisite thing, and near about we have covered the 60% of your welding process till now. So in 40% what is remaining is your different varieties of welding operations which we do. So now since we have studied the welding process, how what are the essential requirements for welding process. So if we move for different parts of welding, different kind of welding, then it will be easy for us to understand, and it will be easy for us to solve problems based on that particular topic. So let's start with today's topic, which is your efficiency of welding. So first of all, we should know that what is welding energy input. Okay, so for welding operation, we supply certain amount of energy to melt the molten material. So what in which way we provide energy to melt material? We all know that for melting material, there is a need of your heat energy over there in arc welding, right? So welding our energy input, we just represent this energy input in terms of in terms of this power per unit length, right? So if you see the the energy input per unit length, which is representing by H here, is computed at the ratio of total input power P of the heat source to its welding welding travel velocity V. So what happens? We use a power supply, right? We use a power supply in a any kind of arc welding process, and with the help of this power supply, we provide power for welding operation. Okay, and let's say this is your electrode and this is your workpiece, right? And for welding operations, your this electrode used to move, either your electrode used to move or your workpiece used to move. Okay,
अगर दो प्लेट आपको ऐड करना है तो या तो आप इलेक्ट्रोड को मूव करोगे या फिर वर्क पीस को मूव करोगे. So what will be the amount of energy for a particular point? आपका ये इलेक्ट्रोड जो है वो मूव कर रहा है. Okay. So for unit time, if you want to find out that thing, since you know that this E is what? VI. And power का यूनिट क्या होता है? Watt. Okay. And watt क्या होता है? Joule per second. Okay. So if you want to know what amount of energy is supplying through by this power source to your workpiece, what amount of energy per unit length it is supplying through this power source. So what we need to do, we need to just divide this power by velocity. So what will happen, the unit of this power is joule per second and you are dividing it by mm per second. So final unit will be joule per mm. So this much energy your power source is supplying for unit length. Okay, for unit length. Okay. So this is just the this is your energy input, right? This is your energy input. So this will be the unit of your H, and H is your energy input per unit length. So आपको जो पावर सोर्स है वो इतना एनर्जी दे रहा है पर यूनिट लेंथ वेल्डिंग के लिए, राइट? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. So again, since we are representing velocity by using v, so for eliminating confusion कम करने के लिए, to reduce confusion, here it is used potential by E. So जो पोटेंशियल है उसको E से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि वेलोसिटी और वोल्ट में कंफ्यूजन ना हो जाए, राइट? सो दिस विल बी योर व्हाट, एनर्जी इनपुट पर यूनिट लेंथ. ठीक है. अब यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक और तरीका होता है एनर्जी इनपुट रिप्रेजेंट करने का, वेल्डिंग एनर्जी इनपुट, और वो होता है जूल पर mm स्क्वायर, mm क्यूब, सॉरी. So per unit volume, what amount of energy is supplying through your power source for per unit volume? So that is also your welding energy input, and this is in terms of welding energy input per unit volume. So what thing will change? This EI will be there, since this is power. V will be there, and you need to just add a area here. Okay, so just multiply velocity with area. This bid area जो होगा आपके, जो यहाँ पर bid area होगा, just multiply by this and you will get your heat energy input per unit volume. So इससे क्या पता चलेगा कि per unit volume पे कितना heat supply हो रहा है, कितना welding energy input हो रहा है per unit area के लिए, right? So I think ये चीज आपको समझ में आ गया होगा. ओके. सो दिस इज व्हाट योर वेल्डिंग एनर्जी इनपुट. एंड इनपुट किसके थ्रू हो रहा है? ये इनपुट हो रहा है थ्रू योर पावर सोर्स. ओके, दिस इज योर पावर सोर्स एंड दिस पावर सोर्स इज supplying this energy for welding operation. So that's why it is known as welding energy input, right? ये हमें समझ में आ गया. Now there are two types of efficiency which we see in welding operation. First kind of efficiency is known as heat source efficiency, and second kind of efficiency is known as melting or heat transfer efficiency. In some question it is mentioned by using melting efficiency, and in some question it is mentioned by using heat transfer efficiency. So heat transfer, melting efficiency, both are same, and heat source efficiency is different. So one by one we will see that what is this heat source efficiency and what is this your melting or heat transfer efficiency. So till now we have seen what, वेल्डिंग एनर्जी इनपुट. तो ये मुझे नहीं लगता इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला कोई चीज होगा कि इनपुट कितना हो रहा है एनर्जी का. बस पर यूनिट लेंथ निकालना है तो पावर को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो वेलोसिटी इनटू एरिया से डिवाइड कर दो. सो यूनिट का खेल है ये, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक. And these are two types of efficiency which we are going to cover. Now let's start with heat source efficiency. Okay, so what happens in case of arc welding having a constant voltage E and a constant current I, the arc heat source efficiency can be expressed by this. So what happens in case of welding operation, जो आपका जो जितनी हीट आपका पावर सोर्स देता है, the energy which power source provide for welding operation, all that energy is not utilized for welding.
some energy get lost, some losses occur by by radiation, by resistance, by other measure. Some losses occur in case of welding operation. So that's why if we are using a power source like this, okay, and we are performing welding operation. So let's say this voltage and current of this power source is Vi. So what will be the power here? V and I. Sorry, power will be Vi. Okay, so this power will be supplied through this power source. But what happens because of radiation, because of resistance and all, this welding unit not receive whole amount of this power. There will be some losses. Okay, so what will be those losses? So those losses will be because of your radiation, your resistance, और जो भी और जो अनडिजायर्ड फिनोमिना है उनकी वजह से वो लॉसेज होते हैं, जिनकी वजह से पावर सोर्स जो आइडियली जितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है उतना वेल्डिंग के लिए नहीं मिलता है. ओके, उतना वेल्डिंग के लिए नहीं मिलता है. So the ratio between the heat transfer, the ratio between, you can say that, यहाँ पे heat transfer का नहीं होगा, यहाँ पे सीधे heat transfer वाली बात तो आगे हम करेंगे. Okay, so what it is, the ratio between the rate of heat transfer from heat source to workpiece, okay, in ideal case, divided by, मैं एक बार और अपने जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि शायद मैं उल्टा बोल दिया था. ओके, so efficiency, this heat source efficiency is the ratio of the actual heat transfer from heat source divided by the ideal heat transfer from the heat source. So in ideal case, this heat source, amount of this power should be equal to Vi, but in actual case, P actual will be less than P ideal, or you can say it will be less than uh, Vi, right? Because in ideal case, your power source is giving power which is equal to Vi. Okay, but in a actual case, there will be some amount of losses over there. Okay, and because of those losses, your weld unit will receive less amount of energy, less amount of power, and the ratio between these actual and ideal is known as your हीट सोर्स इफिशियंसी. सो साधारण भाषा में क्या है कि आपका जो पावर सोर्स है, आइडियली तो वो पावर वी आई जनरेट कर रहा है, बट रियल में हमें उससे थोड़ा कम मिलेगा. ठीक है, रियल में उससे हमें थोड़ा कम मिलेगा. सो एक्चुअल रियल में जो हमें मिल रहा है और डिवाइडेड बाई जो आइडियल केस में होना चाहिए था, इन्हीं को इफिशियंसी को बोलते हैं. इफिशियंसी आपको पता ही है भाई, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, राइट? सो दिस थिंग ओनली रिटन हियर. So let's say Q is the rate of heat transfer from heat source to workpiece. So this is your actual. Okay. So if you are performing welding operation for T time, then total amount of जो energy होगा वो क्या होगा? Q multiplied by T, right? Q multiplied by T. Now, in denominator, you can see the ideal case. So ideal case is written here, the nominal one. So Q nominal multiplied by same amount of time, because power supply भी उतने time के लिए आपको power देगा जितने time आप welding करोगे. So again this thing will be multiplied by T. So ये T से T आप cancel out कर सकते हो, T से T आप cancel out कर सकते हो. And what will be this Q ideal or Q nominal? This will be equal to E times E. So let me also represent this V by E, because there will be velocity. We will represent velocity by using V. So there might be some confusion. There might be possibility of confusion. So हम यहाँ पे E use करते हैं पोटेंशियल के लिए. ओके, सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ई आई, और मल्टीप्लाई के इसको, ये तो रेट है. ओके, इसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा. सो वी हैव मल्टीप्लाइड दिस थिंग बाय टी, ऊपर नीचे, और टी से टी ये कैंसिल आउट हो गया. देन वी विल गेट इफिशियंसी फॉर्मूला लाइक दिस. सो Q जो है, ऊपर जो Q लिखा है, दिस इज द एक्चुअल हीट रिसीव्ड फ्रॉम योर पावर सोर्स, एंड EI इज द एक्चुअल, EI जो डिनोमिनेटर में एक्चुअल पावर जो आपका पावर सोर्स या आइडियल केस में जितना मिलना चाहिए था वो डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंटेड है. ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बार मैं अगर और इसको रिपीट करूँ इन अ सिंपल वे. सो हीट सोर्स इफिशियंसी इज व्हाट?
heat source efficiency, you are using a power source. You are using a power source, and power source is generating some power, right? And which is equal to E times I. Okay, E is your voltage and I is your current, right? EI is your power. But in actual scenario, due to some losses, we receive less amount of power, or you can say less amount of heat, right? So the ratio between this actual or less amount of heat which we are receiving and the ratio of this less amount of heat which we are receiving and the the real one which your power source is generating, which is equal to EI, is known as your heat source efficiency. सो एक्चुअल में जो हमें रिसीव हो रहा है हीट वो थोड़ा कम होगा, और जो आपका पावर सोर्स हीट जो जनरेट कर रहा है पावर वो ज्यादा होगा। ओके, तो इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलेंगे, हीट सोर्स इफिशियंसी बोलेंगे, राइट? तो ये चीज हमें समझ में आ गई, व्हाट इज योर हीट सोर्स इफिशियंसी। now you might ask that from where you will get the value of this q actual आपको कैसे पता चलेगा कि रियल में कितना हीट जो है वो हमको यहाँ पर मिल रहा है फॉर वेल्डिंग ऑपरेशन। so for that we use calorimeter and other arrangement for measuring out the real heat which is used for welding operation, उसके थ्रू वो पता चलता है। एंड ई आई तो आप सीधे पावर सोर्स का आपको पता ही रहेगा कि पावर सोर्स एट व्हाट पोटेंशियल एट व्हाट करंट इट इज वर्किंग, सो ई आई you will find out easily. Okay, but q can be measured experimentally only, q actual जो एक्चुअल में हीट वहां पर वेल्डिंग के लिए यूज हो रहा है, राइट? तो आई थिंक हीट सोर्स इफिशियंसी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? नाउ हीट सोर्स इफिशियंसी इन केस ऑफ वेरियस वेल्डिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे हीट सोर्स इफिशियंसी किसका कहाँ तक वेरी हो सकता है वो यहाँ पर मेंशन है। So you can see that in case of laser beam machining, the heat source efficiency can vary from 10% to 60%। सबसे कम इसमें आपको दिख रहा है और वेरिएशन भी काफी ज्यादा है, बिकॉज इन केस ऑफ लेजर बीम वेल्डिंग व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लेजर बीम welding, we use laser, right? And there will be possibility of radiation, reflection and other things, and because of that only losses will be more in case of laser beam welding. But using some precautions, using some proper arrangement, we can improve the efficiency till 60%, right? And in case of plasma arc welding, same thing happen. But if you see electron beam welding, so in this case we use a vacuum inside the chamber, and that's why because of that we face a very little amount of decrement in the energy. That's why we can obtain 90% up to 90% of efficiency in case of electron beam welding, right? So I think ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि हीट सोर्स इफिशियंसी का वेरिएशन कैसे है। Now we are going to see the melting efficiency. What is melting efficiency? Okay, so first of all we need to read this statement. So melting efficiency is the ability of the heat source to melt the base metal, right? So melting efficiency is the ability of the heat source to melt the base metal as well as the filler metal. तो ये होता है मेल्टिंग एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है हम समझेंगे इसको। सो फॉर मेल्टिंग डाउन योर फिलर मटेरियल एंड योर बेस मटेरियल यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, राइट? दिस इज योर, ये यहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया दिख नहीं रहा है, ये ए फिलर है। ओके, सो फॉर मेल्टिंग डाउन एनी मटेरियल यू नीड सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए आपके पास एक ये मेटेलिक कोई बॉडी है जिसको आपको मेल्ट करना है, तो आप पहले इसी हीट दोगे कहाँ तक हीट दोगे? जब तक ये कब कहाँ ना पहुंच पाए, मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच पाए। ओके, उसके बाद कुछ हीट लगेगा जब इसका फेज ट्रांसफर होगा, ठीक है? तो आपको दो दो तरीके से हीट होंगे, एक तो आपका सस्टेनेबल हीटिंग होगा और दूसरा आपका लेटेंट हीटिंग होगा, राइट? तो आपका जो भी मटेरियल है वो मेल्ट होगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो चाहिए होगा ना। But in case of welding, what happens? We have the melting is happening for two different parts. One part is your filler rod, and second part is your base material. So both are melting. So we need to have energy to melt this filler rod as well as this filler part and as well as this base part. Okay. So let's say we have a specific energy for melting down this स्पेसिफिक एनर्जी मैं कह रहा हूँ मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो लेट्स से वी हैव अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग डाउन दिस फिलर मटेरियल एंड
विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग डाउन दिस बेस मटेरियल। तो किसी मटेरियल का कितना कितनी एनर्जी जरूरत होगी उसके पर यूनिट वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए, ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स से फॉर बेस मटेरियल योर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ बेस मेटल इनटू मेल्टिंग पॉइंट इज एच बेस। ठीक है, तो ये एच बेस जो है आपका सस्टेनेबल हीटिंग में जितना एनर्जी लगेगा और जो लेटेंट हीटिंग में जितना एनर्जी लगेगा उस सबको मिलाकर है। ठीक है, सबको मिलाकर है। लेट्स से दैट वैल्यू इज इक्वल टू एच। okay, so at h is for unit volume. So here you have certain amount of volume of base metal. Okay, certain amount of volume of base metal जिसका area a base है, and v is your what? V is your welding speed. So if you multiply this velocity with your a base, then you will get volume per unit time. Okay, let's say you are performing welding operation for t, for duration t. So let's multiply by this t, then you will get the total volume of this a base. And if you multiply this total volume with this h base, then you will get the amount of heat which is essential to melt down this base part. In the same way, you can find out the heat required for melting this filler part. ठीक है, a filler part. ओके, सो दिस अमाउंट, अब दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपको पता चलेगा, जो न्यूमरेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना एनर्जी हमको चाहिए भाई बेस और फिलर दोनों को मेल्ट करने के लिए, इतना हमको एनर्जी चाहिए। ओके, बट होता क्या है, जो हमारे पास एनर्जी आती है, जो हमारे पास पावर सोर्स से एनर्जी आती है, वो इसके बराबर होती है। ठीक है, अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था ना ये वाली चीज, हीट सोर्स इफिशिएंसी। सो न्यूमरेटर में क्या था? द एक्चुअल हीट which is received by your weld zone, and that was Q was equal to mu times EI। तो ये आपको एक्चुअल हीट मिल रहा था, कहाँ पे मिल रहा था? वेल्डिंग के लिए मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पर, तो ये डिनोमिनेटर में आपको एक्चुअल हीट मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर एक्चुअल हीट विच यू आर रिसीविंग एट योर वेल्ड जोन फॉर परफॉर्मिंग वेल्डिंग ऑपरेशन, राइट? एंड फॉर टी ड्यूरेशन, टी टाइम के लिए, इसलिए टी से मल्टीप्लाई हुआ है। but we need only this much amount of energy to melt down base as well as filler rod। दोनों को मेल्ट करने के लिए बस इतना ही एनर्जी चाहिए। तो हमारे पास जो एनर्जी आता है ना, वो ज्यादा होता है जितना हमको मेल्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए उससे। ठीक है, तो इन रेशियो को, द रेशियो बिटवीन द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट डाउन बेस as well as filler, okay, the ratio between the energy required to melt down filler and base material and the actual energy which is supplied by your power source is known as melting efficiency। तो मैं इतना लंबा स्टेटमेंट बोल दिया, आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड सा बता दिए, तो साधारण भाषा में थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए, वी हैव बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हियर। सम स्टूडेंट्स लाइक टू take lectures in Hindi, and some students like to watch lecture in English। So I just try to do justice for both kind of students। थोड़ा हिंदी में बोले, थोड़ा इंग्लिश में बोले। और होता क्या है कि कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम हिंदी में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सी चीजें ऐसे रियल लाइफ में होती हैं जो हम हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उनकी फीलिंग जुड़ी होती है हिंदी से, बचपन से वो हिंदी यूज किए रहते हैं। तो जो रियल जिस्ट अगर वो किसी चीज का देना चाहते हैं तो हिंदी में ही बोलेंगे। ओके, तो बट वी आर स्टडिंग हियर टेक्निकल सब्जेक्ट, सो टेक्निकल सब्जेक्ट में वी नीड टू यूज इंग्लिश वर्ड, बट उसको थोड़ा सा तहे दिल से जोड़ने के लिए हमें हिंदी शब्द भी थोड़ा यूज करना पड़ता है। तो वी हैव बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो हमारे जो अंग्रेजी वाले जो दोस्त हैं वो बुरा ना माने, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में भी यूज करूं, और जो हिंदी वाले दोस्त हैं वो भी बुरा ना माने, क्योंकि हम तो सबको एक साथ पढ़ना है, राइट? सो what is this melting efficiency? So basically melting efficiency is the ratio between the heat required to melt down your pillar and base and the actual heat which is supplied from your power source। So this is the ratio। So melting efficiency क्या है भैया? दिमाग में ऐसे आंख बंद करके सोचो, melting efficiency मतलब क्या? We want to melt down the material। So material को मेल्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए उतना हमें पता चल जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह का थोड़ा सा इक्वेशन लगेगा क्वेश्चन में, पता चल जाएगा भाई मेल्ट करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। अब कुछ एनर्जी सप्लाई हो रहा होगा, तब जब सप्लाई हो रहा है वो इससे ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में आएगा।
और मेल्ट करने के लिए जितना चाहिए न्यूमरेटर में आएगा। इसी को रेशियो को क्या बोल देंगे, मेल्टिंग इफिशियंसी बोल देंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, मेल्टिंग इफिशियंसी एंड योर पावर सोर्स इफिशियंसी। इन दोनों में डिफरेंस, आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना थोड़ा सा जरूरी होगा। ओवरलैप मत कर देना दोनों को, क्वेश्चन गलत कर दोगे नहीं तो। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे जिससे थोड़ा सा ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नाउ यहाँ पे नोट पे क्या लिखा है थोड़ा देख लेते हैं। जो भी टर्म है यहाँ पे जो मैं बोला हूँ वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि V इज योर वेल्डिंग स्पीड, H बेस इज योर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ बेस मेटल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्ट इट, बेस मेटल के लिए। H सेम थिंग फिलर के लिए। T वेल्ड जो है इज अ वेल्डिंग टाइम, A बेस योर एरिया ऑफ बेस एंड A फिलर इज योर एरिया ऑफ दिस फिलर। बार बार वही हटा दे रहा हूँ इसको लिख लिख के। दिस इज योर A फिलर, राइट। नोट में क्या लिखा है, द क्वांटिटी इनसाइड द पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अच्छा, ये पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, दिस बेसिकली दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग योर वॉल्यूम, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीट सोर्स टू वर्क पीस, राइट। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब यहां से हमको क्या समझ में आता है, थोड़ा एक चीज और देख लीजिए, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, ध्यान से देखना, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग इफिशियंसी ऑफ आर्क, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर यू कैन सी वेलोसिटी, सो इफ यू इंक्रीज द वेलोसिटी दिस मेल्टिंग इफिशियंसी विल इंक्रीज, राइट। ये चीज हमको यहाँ से समझ में आ गई। Okay, now what happens, we face a little difficulty to calculate this filler area and this base area। इन दोनों को कैलकुलेट करने में हमें होती है समस्या, ठीक है। टोटल एरिया तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इंडिविजुअल ऐसे कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्ट शेप। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी डू बेसिकली, यहां पर ध्यान से देखो, when we do welding operation, so we use this consumable electrode, okay, and by using servo mechanism we feed this electrode, ठीक है। ये रोलर है जो रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोड विच इज कमिंग डाउन, ओके। एंड यहाँ पर मान लीजिए आपका ये वर्क पीस है फॉर वेल्डिंग, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोड, एंड यहाँ पर आपका वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहा है, राइट। So what we want to know, what we want to find out, we want to find out this A filler। A filler क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए A वेल्ड जो है ना, टोटल एरिया तो आराम से निकाल लेंगे आप, इसकी ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली हम निकाल लेते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेशन से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें ए फिलर और ए बेस अलग अलग निकालने में प्रॉब्लम होती है, तभी हम एक्चुअल इफिशियंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों में से ए फिलर और ए बेस में कोई एक एरिया निकाल लो, and then subtract this one area from this total A weld, and then you will find out the remaining one। So for us to calculate this A filler is easy। ये कैसे easy होता है, ध्यान से देखो। So what we do, we feed this electrode wire by using a servo mechanism, and let's say the feed और feeding जो होता है वो constant होता है, let's say that feed is V, okay, V is your feed mm per second, this is your feed, by this rate you are feeding your electrode, right, okay। And let's say this is your V filler, V filler, so V filler is what, V filler is your feed velocity by which we are feeding the electrode, right। And we also know the radius of this electrode, so we can find out what is the area of this electrode, right। And if we multiply this area with filler with this filler velocity, then we will find out that how much amount of volume we are feeding for a particular time, ठीक है। ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब जितना यहाँ से वॉल्यूम आप फीड करोगे, इतना ही वॉल्यूम तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, बाहर दुनिया से और थोड़ी चला आएगा, जितना आप दोगे उतना ही वहां पे डिपॉजिट होगा। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट इक्वेट दीज टू थिंग्स, the right one representing the feeding volume, what you are feeding, and in left side we are using, we are trying to find out the area of filler, and we know the welding velocity, that at this velocity we are moving our electrode, or we at this velocity we are moving our workpiece. Though, so if you are finding out, if you are trying to find out the total volume deposited, then you need to multiply this velocity with
area of the filler, right? Which I need to find out. So just multiply this thing. राइट साइड में देखो सारी चीजें आसानी से अवेलेबल है. वी नो द रेडियस ऑफ योर इलेक्ट्रोड, वी नो द rate by which we are feeding the electrode, we know the weld time. So in this way you can find out the A filler. And now for A base क्या कर सकते हैं आप? A weld माइनस A filler कर दो, तो आपका A base आ गया. अब now you have the area of A base and A filler. Now you can find out the melting efficiency by using formula which I mentioned in previous slide. ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है. अगर आप ESC में बैठोगे तो कभी कभी जो कन्वेंशनल पेपर में होता है ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको डिटेल्ड कैलकुलेशन करना पड़ता है. एंड यू कैन डू दिस डिटेल्ड कैलकुलेशन ओनली इफ यू नो द बेसिक्स. अगर आपका बेसिक पता है इसके बारे में तभी आप ये कर पाओगे. इसीलिए मैं ये चीज यहाँ पे इंक्लूड कर रखा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर फिलर जो है और वी फिलर जो है ये आर द रेडियस एंड फीडिंग स्पीड ऑफ योर फिलर मेटल. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. तो आई थिंक मेल्टिंग एफिशिएंसी का ये पार्ट भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया. अब हम आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये समझने के बाद हमें करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है. हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि हम जो भी थ्योरी करें पढ़ने के बाद जो भी हमारे पास क्वेश्चन आए उसको हम इजीली सॉल्व कर लें. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन. So question number 10, 11, sorry. So in 11, a gas tungsten arc welding operation is performed using a current of 250 ampere and arc voltage of 70 volt at a welding speed of 5 mm per second, assuming that arc efficiency. देखना यहाँ पे क्या लिखा है, arc efficiency लिखा है. Arc efficiency is 70%. The net heat input per unit length of the weld is. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें हमने दो इफिशियंसी पढ़ी है. एक हमने पढ़ा हीट सोर्स इफिशियंसी, एक पढ़ा हमने क्या, मेल्टिंग इफिशियंसी. सो मेल्टिंग इफिशियंसी का दूसरा नाम होता है हीट ट्रांसफर. यहाँ पे आर्क इफिशियंसी लिखा है. आर्क इफिशियंसी मतलब क्या है भाई, कि जो आर्क को जो मिल रहा है पावर. ठीक है. यहाँ पे मेल्टिंग वगैरह की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आर्क को जो पावर मिल रहा है उसकी बात कर रहा है ये. तो मतलब क्या होगा, आर्क पावर, आर्क इफिशियंसी इज सेम एज योर हीट सोर्स इफिशियंसी. तो ये समझना बहुत जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होना आपने को. ठीक है. तो यहाँ पे मेल्टिंग की कोई बात ही नहीं हो रही है. तो दिस इज योर हीट सोर्स इफिशियंसी. अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं हीट सोर्स इफिशियंसी क्या था हमारे लिए. तो हीट सोर्स इफिशियंसी हमारे लिए क्या था, हीट सोर्स इफिशियंसी हमने क्या पढ़ा था भाई. ठीक है. कि जो आपको क्यू मिल रहा है, ठीक है, जो आपको क्यू मिल रहा है एक्चुअल रियल में आपको वेल्डिंग के लिए, और नीचे जो आप पावर सप्लाई दे रहे हो ई आई टाइम्स बी. ठीक है. तो ये आपका था, और ये जो क्यू था ना, क्यू एक्चुअल, ये आपका पर यूनिट लेंथ था, इसलिए मैंने ऐसा फॉर्मूला बनाया. ठीक है. यही चीज तो हमने देखा था अभी हीट सोर्स इफिशियंसी में, कुछ नया तो थोड़ी था. जो ऊपर जो है यही तो हमें निकालना है, द नेट हीट इनपुट, यही तो पूछा है यहाँ पे, नेट हीट इनपुट, यही हमें पता करना है. राइट. तो ये चीज हमें पता करनी है. सब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको. तो यहाँ पे इफिशियंसी 0.7 हो जाएगा. ये आपको क्यू एक्चुअल निकालना है जो हीट इनपुट हो रहा है. और जो रियल में आइडियल केस में जो जो एनर्जी है पर यूनिट लेंथ वो कितनी है, 20 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 250 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई योर वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज व्हाट 5 mm. तो इसको ऐसे ही रहने दो 5, क्योंकि जो आपका क्यू आएगा वो भी जूल पर एम में आएगा. तो नाउ जस्ट डू सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ओके. तो एक बार ये फॉर्मूले को हम देख लेते हैं. यही तो था यहाँ पे जो यूज़ कर रहे थे. तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इसको ध्यान से देख लो, यही वाली चीज़ है क्यू और ये आपका ई आई टी वेल. ठीक है. अब यहाँ से ध्यान से देखिए, नीचे वाला जो हमारे था ये था हमारे पास जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड में था. ठीक है. और हमें क्या चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे, हमें चाहिए हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ चाहिए हमें. ठीक है. तो हमारे पास जो ये वेलोसिटी है इसको थोड़ा हटाते हैं, हमें हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ चाहिए.
तो उसके लिए हम पहले, क्योंकि हीट में से थोड़ा सा इक्वेशन गड़बड़ा रहा था यूनिट में, तो ध्यान देने की जरूरत ये है कि एक्चुअल में हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला ये है, दिस इज योर एक्चुअल इफिशियंसी फॉर्मूला। अभी वेलोसिटी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हमको सिंपल समझ में आया कि एक्चुअल हमारे इफिशियंसी का फॉर्मूला ये है, ओके। और यहाँ पे हम कर देते थे टी का मल्टीप्लाई, कि इतने टाइम के लिए वेल्डिंग हो रहा है, तो ये जो आपका पावर है ये आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। तो इसको जब आप सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा जूल, ठीक है। तो इसलिए ऊपर नीचे दोनों में टी से मल्टीप्लाई कर दो। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई मतलब तो है नहीं, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको फाइनल जो क्यू एक्चुअल आएगा वो आएगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 250, और इसकी जो यूनिट होगी जूल पर सेकंड होगी। ध्यान से देखिएगा, ये जो यूनिट है ये जूल पर सेकंड होगा। यूनिट का खेल भी बड़ा वो होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ एग्जामिनेशन। तो क्यू एक्चुअल विल बी इक्वल टू व्हाट, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करिए, तो 0.7, और ये कितना हो जाएगा, ओके। तो 0.035 इतना जूल पर सेकेंड होगा आपका क्या, हीट इनपुट। अब थोड़ा क्वेश्चन में पूछिए, देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है द नेट हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ पूछा है भाई यहाँ पे, और हमने किसमें निकाल दिया है, सिंपल हमने क्यू इनपुट निकाल दिया है। तो पर यूनिट लेंथ का यूनिट क्या होना चाहिए, पर यूनिट लेंथ मींस द यूनिट शुड बी इक्वल टू जूल पर एमएम। इट मींस द वैल्यू व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड शुड बी डिवाइडेड बाय दिस वेलोसिटी। तो आपका जो क्यू आ जाएगा वो हो जाएगा, या फिर यहाँ पे लिख दूं मैं, क्यू तो ऊपर यूज ही कर रहा था, लेट मी राइट हीट इनपुट per unit length equal to this q upon velocity, q actual upon velocity, and this will be equal to your 3500 divided by 5। तो क्या मिलेगा आपको, 700 जूल per mm, because the unit of this velocity is mm per second। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा वैल्यू 700 जूल पर mm। सो यूनिट का खासा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन आपको करना है। तो जो भी आप बेसिक पढ़े हैं, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला गलत लिखा था मैं, तो बेसिक पे फिर मैं गया, बेसिक पे मैं गया कि भाई व्हाट वाज योर दिस आर्क इफिशिएंसी। सो आर्क इफिशिएंसी वाज इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन द पावर सप्लाइड बाय योर पावर सोर्स, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब यहीं से हमने शुरुआत किया, फिर हमने देखा कि वी ऑब्टेन द वैल्यू in joule per second, but the question is asking the heat input per unit length। तो पर यूनिट लेंथ के लिए क्या कर दिया हमने, वॉल्यूम से वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। तो यूनिट का खासा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे सॉल्व हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, a welding operation is being performed with voltage 30 volt, current 100 volt ampere, the cross sectional area of the weld bed is 20 mm square, the workpiece and filler are of titanium for which the specific energy of melting, दोनों सेम है, ठीक है, और सेम ही होता है वेल्डिंग में, आपने ध्यान दिया ही होगा। सो द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ मेल्टिंग इज 14 जूल पर एम एम क्यूब एज्यूमिंग अ थर्मल इफिशियंसी। अब देखिए थर्मल इफिशियंसी मतलब क्या है, मेल्टिंग इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी मेल्टिंग इफिशियंसी एक ही बात है। ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस 70%, द वेल्डिंग स्पीड इज। अब पहले तो हम आंख बंद करके मैं लिखता हूँ क्या होता है मेल्टिंग इफिशियंसी, या थर्मल यहाँ पे लिखा है तो थर्मल और मेल्टिंग इफिशियंसी क्या था भाई, ये था कि हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट filler and base metal divided by what, actual heat from power source।
यही तो था हमारा फॉर्मूला कि मेल्टिंग करने के लिए जितना कितना चाहिए, मेल्टिंग करने के लिए इतनी हीट चाहिए, और हमें हमारे जो पावर सोर्स है उतना इतना मिला, दोनों का रेशियो ले लो, मेल्टिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला ये कोने में पहले लिख देना है कि भाई ये चीजें इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि वी हैव specific energy of melting and which is equal to 14 joule per mm cube. So if you want to find out the actual heat energy to melt down a particular amount, a particular volume, then we need to multiply this thing by the volume. So सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ये मेल्टिंग, इतना मेल्ट करने के लिए इतना हमको एनर्जी चाहिए गिवन है, तो न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू लिखो 14, but this is for per unit volume, and it is also given that area of bed is what, 20, so multiply this thing by 20. Now we don't know the velocity. ठीक है, अगर वेलोसिटी मिल जाता तो ये आपका पूरा पता चल जाता कि भाई इतनी एनर्जी चाहिए होगी ये वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए, बट ध्यान से देखिए तो वेलोसिटी तो पूछा है, तो लेट्स से दैट वेलोसिटी इज v। ठीक है, तो ये आपका न्यूमरेटर वाला टर्म हो गया सही। और ध्यान से देखिए, अगर इफ यू जस्ट try to find out the unit of this numerator, you will find that this unit will be joule। तो अब मतलब आप सही जा रहे हैं। ठीक है, ओके, जूल पर सेकेंड आएगा तो आप सही जा रहे हो। नाउ डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, डिनोमिनेटर में जितना हीट सप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पे तो आर्क इफिशियंसी या फिर पावर सोर्स इफिशियंसी हीट वो नहीं दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप उसको 100% मान लो, नहीं दे रखा है तो 30 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई आई 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और मेल्टिंग एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 0.7। थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं इसको सॉल्व, सब कुछ सही लिखा होगा ना। सो ये 1 में जाएगा, 2, एवरीथिंग इज राइट और नॉट, क्रॉस चेक भी करते रहना है भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा देखो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7.5 mm पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा। और ये क्या वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी नहीं, ये वेल्डिंग स्पीड है, सॉरी। सो दिस विल बी योर वेल्डिंग स्पीड। तो आई डोंट थिंक दैट आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी इसमें, क्योंकि मेल्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमको याद रखना है भाई कि जितना मेल्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा अपॉन जितना टोटल मिल रहा है। तो मेल्ट करने के लिए ऑलरेडी दे रखा है भाई 14 जूल पर एम एम क्यूब। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई दिस बाई वॉल्यूम। So volume, what will be the volume? Area multiplied by velocity. So area is given 20 and velocity, let's say velocity is v. So this will be your actual amount of heat which is required to melt down your uh, uh, pillar. Okay, pillar rod. And now in denominator, what should be there? There should be actual heat from power source. Then you will say that, sir, this will be the ideal. This will be the ideal power which is produced by power source. But since there is no efficiency is mentioned here, no power source efficiency is mentioned here, that's why we will take that as 100%. So आप सीधे यहाँ पर V और I use कर लोगे, directly you will use V and I, and by solving out you will find out this velocity as sorry, welding speed as 7.5 mm per second. थिंग इज क्लियर नाउ। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट वगैरह करके पूछ लेना, मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डिंग स्पीड इज डबल्ड। अब यहाँ पे देखो पहले, अब क्या कह रहे हैं, ये वेल्डिंग स्पीड डबल हो गया। Assuming all other parameter to be constant, the cross sectional area of the weld bed will be। अब ये कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा, कितना बढ़ेगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो अब थोड़ा समझते हैं। सो व्हाट विल बी द सप्लाई, हीट सप्लाई, इसीलिए मैं सबसे पहले स्लाइड पे हीट सप्लाई बताया। तो हीट सप्लाई विल बी योर, लेट्स से दिस इज योर हीट, ओके, एंड लेट्स से वी आई, ये पावर है आपका। ठीक है, इफिशियंसी वगैरह सब अभी कुछ नहीं है, मान लो सब कुछ 100% है। ठीक है, नाउ
व्हाट विल बी हीट सप्लाई पर यूनिट वॉल्यूम? सो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा आपका? एच योर, यू कैन से पावर सीधे लिखते हैं, वॉट पर एम क्यूब, ये कितना होगा? वी आई, या फिर एक काम करो, यहाँ पे मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, हीट सप्लाई पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू वी आई, और मान लीजिए वेल्डिंग आपका टी टाइम के लिए हो रहा है। अब इसकी यूनिट जो ऊपर वाली है वो हो जाएगी जूल। अब यहाँ तक ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? एरिया मान लीजिए ए है, ये आपका वी जो है, वेयर ए इज योर वेल्ड एरिया, या फिर इसको जनरली किताबों में बिड एरिया दिया होता है। ठीक है, एंड वी इज व्हाट? योर वेल्डिंग स्पीड। तो ये तो वेरी नहीं होगा ना, ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी तो आपकी कांस्टेंट होगी, पर यूनिट वॉल्यूम इतना हीट सप्लाई होगा। नाउ इन क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग दैट वेल्डिंग स्पीड इज डबल। अब देखिए आप अगले पार्ट में, वी आई टी ऊपर जैसा का तैसा रहेगा, वेल्डिंग स्पीड कितनी होगी? डबल हो गई। तो ये ए को ऐसे यहाँ पे वी की जगह पर क्या हो गया? टू वी हो गया। ठीक है, नाउ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेल्ड बेड विल बी, तो ये आपका बेड ही है एरिया आपका, ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि वेल्ड होता है कि बेड होता है। ओके, सो वेल्ड बेड का एरिया के साथ क्या होगा? वी नो दैट दिस होल क्वांटिटी शुड बी कांस्टेंट। आपका हीट सप्लाई पर यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अब इस चीज को कांस्टेंट करने के लिए ए को क्या होना पड़ेगा? फॉर मेंटेनिंग दिस कांस्टेंट थिंग, यू द ए शुड डिक्रीज बाई 50%। ए शुड बी इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, तभी यहाँ पर ए शुड बी कन्वर्टेड इनटू ए बाई टू। सो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहोगे आप आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा यहाँ पे ग्रीन में अगर लिखे तो? क्रॉस sectional area of the weld bed will decrease by 50%. Actually, in question, there were options, four options: decrease by 50%, increase by 25%. तो ऑप्शन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। सो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जो ऑप्शन होगा ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि एरिया जो है वो 50% से डिक्रीज होगा टू मेंटेन दिस कांस्टेंट थिंग। ओके, सो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें कि केवल आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे? हीट सप्लाई क्या होता है, जो कि कांस्टेंट होता है हीट सप्लाई। तो यहाँ से आप बहुत इजी क्वेश्चन है कर सकते हैं आसानी से। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, ड्यूरिंग TIG welding process the arc current and arc voltage were 50 ampere and 60 volt respectively when the welding speed was 150 mm per minute. In another process the TIG welding is carried out at a welding speed of this at the same arc voltage and heat input to the material so that weld quality remain the same. The welding current for this process is, ठीक है, दो जगह टिक वेल्डिंग हो रही है। ठीक है, we are performing TIG welding at two places. Okay, and at the same arc voltage and heat input. So it is saying that heat input is same. अब फिर से वो पहला वाला स्लाइड आपको याद होना हो जाना चाहिए। What was your heat input? That was VI T upon, यहाँ पे V के जगह पर E लिख रहा हूँ यार, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। E is your voltage. So it was EI T upon A bid area into V was what? V was your, और ये क्या था आपका? हीट इनपुट। दिस वाज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये चीज हमें पता है।
और ये वेरी नहीं हो रही, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द सेम आर्क वोल्टेज एंड हीट इनपुट, ठीक है. So now we need to find out. In first case, it is given the value of ampere current. It is given the value of voltage, and it is also given the value of what, speed. Okay, but in another case, it is just giving us the value of your velocity. Okay, and it is saying that your voltage is constant. Your voltage is constant, right? And then it is asking that what will be the welding current for this process, ठीक है. ओके, सो और यहाँ पर एरिया भी सेम होगा, राइट, एरिया भी सेम होगा. सो ये आपका यहाँ पे सबको सफिक्स 1 कर लीजिए, तो केस 1 के लिए है, एंड केस 2 के लिए हो जाएगा E2 I2, और वेल्डिंग टाइम भी सेम ही रहेगा, T अपॉन A bit into what, V2, राइट. सो एरिया वगैरह यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है. बिकॉज हियर एरिया के बारे में कुछ बोला नहीं है, और आपका ये क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हीट इनपुट सेम आर्क वोल्टेज एंड हीट इनपुट, और हीट इनपुट को हम आपका जूल पर mm में रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, और कई जगह इसको जूल mm³ में भी रिप्रेजेंट करते हैं. हियर आई हैव जस्ट मैंने लिखा है जूल पर mm³ वाला फॉर्मूला लिखा है, ठीक है. सिंस दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट एरिया, तो आप मान लोगे कि एरिया तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रिफ्लेक्टिंग योर हीट इनपुट एज दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है. जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था आपने, वहाँ पे हीट इनपुट के लिए हमें यूज करना पड़ा था जूल पर mm³. तो कोई क्वेश्चन देख के ये भी थोड़ा सा हमें समझना होगा, राइट. तो ये सेम होगा, कैंसिल आउट हो गया. अगेन आपका वेल्डिंग टाइम सेम होगा, तो इसको हटा दो यहाँ से. अब बचता क्या है, वेरी क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू सीधे पुट करो. इन क्वेश्चन इट इज ऑल्सो मेंशन दैट वोल्टेज इज ऑल्सो सेम. सो ये यहाँ पर ई से ई भी कैंसिल हो जाएगा. हियर E1 इक्वल टू E2, ठीक है. अब देखिए क्या होगा फिर. I1 कितनी है, वैल्यू पुट करते हैं. I1 इज योर 50 एम्पियर, ओके, एंड इनिशियल V1 is your 150, and in second case your I need to find out, and velocity is your 120, ठीक है. I think this part is clear. Speed of, varied out the welding speed of this at the same arc voltage, करंट हमें निकालना है, ठीक है. अब बताते हैं क्या होगा करंट. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखिए 4, ये 5, ये 10, तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 एम्पियर, ठीक है. दिस विल बी योर आंसर. तो देखो यहाँ पे सीधे हीट इनपुट पे क्वेश्चन है आपका, हीट इनपुट. सो वी शुड नो दैट व्हाट इज हीट इनपुट. हीट इनपुट, द यूनिट ऑफ हीट इनपुट इज जूल पर mm और जूल पर मीटर क्यूब, ओके. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में साफ साफ दिया भी है कि फॉर सेम आर्क वोल्टेज एंड हीट इनपुट, सो it is also mentioned that your heat input is same, so you need to write this kind of equation first of all कि भाई heat input अगर सेम होगा तो क्या होगा, मतलब जूल पर mm³ जो हीट सप्लाई हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, वो कांस्टेंट होगा दोनों केस में. उसके बाद आप इक्वेट करके आई की वैल्यू निकाल लो. ओके, सो ये था आज का लेक्चर. आई होप आपको लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर नहीं आती हैं तो आप कमेंट करिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो आई होप यू everything is clear in this lecture, and if you are facing any kind of difficulty in any concept and you think that this part is not clear, you can ask that question through comment section, or through by using your telegram group also. You can mention your doubt over there, okay. So और इसके अलावा if you are liking this videos, if you are liking this lecture series, so subscribe our channel, और इनको दोस्तों के बीच में स्प्रेड करिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास हमारा लेक्चर और सीरीज पहुंच सके. So today's for attending thank you for attending today's lecture. So in next lecture we will start the different types of welding operations. So we will start with
द टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। सो आर्क वेल्डिंग के वेरिएशन से टाइप से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू ऑल।